Hello students, today we will do what mathematical logic. मैक्सिमम मार्क्स इसमें जाते हैं अच्छे स्टूडेंट्स के. ओके, मोस्ट निग्लेक्टेड टॉपिक इज मैथमेटिकल लॉजिक. तीन प्रॉब्लम्स तो आते हैं इसमें सीईटी में इसके ऊपर. A declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously is called what? A statement. It is also called as what? Proposition. Okay, there are five logical connectives: and, or, if, then, if and only, if not. And को क्या बोलते हैं? Conjunction. Or is what? Disjunction. If then is what? Conditional. Or it is also called as what? Implication. Biconditional, it is also called as what? Double implication. And negation. Okay, these are the symbols. ये आपको सब पता होगा. Truth table, you know, if there are two statements, there are how many possibilities? Four possibilities: T, T, F, F, T, F, T, F. And statement is true if both the statements are true, otherwise the statement is false. Or is false if both are false, otherwise the statement is what? True. If then may, if statement is true and then statement is false, then the statement is false, otherwise the statement is always true. And if and only if में दोनों अगर statement same रहेंगे truth value T T और F F, the statement is what? True, otherwise the statement is what? False. Maximum depends on this truth table. If P is true, not P is false. If P is false, not P is what? True. Where if the statement, a statement pattern which has all the entries in the last column as T is called what? A tautology. And last column as F is called what? Contradiction, also called as what? Fallacy, denoted by C or F. Okay, tautology denoted by what? T. And a statement which is neither a tautology nor a contradiction is called what? Contingency. Dual of a statement, very important for CET. You just to find dual of a statement, replace and by or by and, T by F. कभी कभी C भी देते हैं. C means contradiction, replace T by C by T or F by T. Okay. Next are quantifiers. There are two types of quantifiers: universal quantifier and existential quantifiers. Now the symbol, this is for what? For all. For all, for every is called what? Universal quantifier. And there exist for some, for one, they are called what? Existential quantifiers. Two types of quantifiers. Now where we are using quantifiers, a statement which contains one or more variable is called as what? An open sentence. Matlab, for example, if you take x plus 3 is equal to 8. Now this statement will be true when x is how much? 5. This statement will be false when x is not equal to 5. So it depends on what the value of x. So this statement can be either true or false. So we say this is not a statement, this is what? A sentence. Okay, but if we use a quantifier in this, okay, अगर हमने डाला for example x has sets 1 2 3, okay, then there exists at least, this means what? At least one element of x such that x plus 3 will be 8. तो अभी इसमें ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक भी वैल्यू में वो 8 नहीं आ रहा है, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स. This is always false because of this quantifier there exist. Okay, this means what? There exist, this means what? For all. ये इंट्रोड्यूस कर दिया तो द सेंटेंस जो ओपन सेंटेंस था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टेटमेंट में. एंड सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट? क्वांटिफायर स्टेटमेंट्स. झेपा क्या? A sentence which contains one or more variable is called what? An open sentence. मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ? x plus 5 less than 7. Now it depends on the value of x. सिर्फ ऐसा ही दिया रहेगा. This is not a statement, this is what? A sentence. इसको स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? x को डिफाइन करते हैं. x में कुछ सेट्स कंटेन करते हैं 1 2 3. ओके, और फिर क्वांटिफायर करते हैं फॉर ऑल. अगर हमने फॉर ऑल ले लिया तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? False. Instead of for all, if you consider there exists at least one element such that this is, then this statement will become what? True.
मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, कोई भी एक क्वांटिफायर यूज करके हम लोग सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टेटमेंट में, बाय यूजिंग व्हाट, क्वांटिफायर, सो दैट द स्टेटमेंट कैन आइदर बी ट्रू और इट कैन बी व्हाट, फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, एडम पोर्टेंट लॉ, पी और पी इज पी, पी एंड पी इज पी, ये दे सकते हैं आपको और पूछ सकते हैं दिस इज विच लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है, ये सेम एज एल्जेब्रा है। एसोसिएटिव लॉ सेम एज व्हाट, एल्जेब्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द स्टेटमेंट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, okay. De Morgan's law, not of p and q is not p or not q, not of p or q is not p and not q. Complement laws, p or not p is always true, because or is true if any one of the statement is what, true. True or false is what, true, and false or true is always what, true. और में कोई एक भी ट्रू रहेगा तो स्टेटमेंट क्या रहता है, ट्रू, इसलिए दिस विल बी व्हाट, ऑलवेज ट्रू। एंड में one of the statement will be false, so the statement is always false, because if p is true not p is false, if p is false not p is true, and में एक भी अगर f रहेगा then the statement is what, false. P will be true not p will be false, p will be false not p will be true, but the statement will be always what, false. आइडेंटिटी लॉ देखिए, p और f इज इक्वल टू p, कुछ नहीं आता तो आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखिए, p का वैल्यू आप ट्रू डालिए, p का अगर ट्रू डाला तो व्हाट इज ट्रू, और f ट्रू। p अगर आपने फॉल्स डाला तो इसका वैल्यू कितना आएगा, फॉल्स। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, p, तो इसका आंसर विल बी व्हाट, p। दिस इज आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पे देखिए P एंड F, अगर P फॉल्स रहेगा तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, P ट्रू रहेगा तो भी स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स, बिकॉज वन इज व्हाट, फॉल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ P इज व्हाट, ट्रू और फॉल्स। इसमें देखिए दिस स्टेटमेंट विल बी ऑलवेज ट्रू बिकॉज बीच में क्या है, और, and this depends on what, p. If p is true, statement is true. If p is false, the statement will be what, false. So it depends on what, p. Absorption law, p or p and q is what, p, p and p or q, ये देखिए ये दोनों सेम सेम रहना चाहिए, it is equal to what, p. okay, ये जितना भी मैंने प्रॉपर्टीज लिखा है, each statement is dual of the other. डुएल में क्या करते हैं, और इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, एंड, और एंड इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, और। दिस इज डुएल ऑफ दिस, दिस इज डुएल ऑफ दिस, ये सब एक दूसरे के क्या है, डुएल स्टेटमेंट। दिस आर व्हाट, डुएल्स ऑफ each other, or is replaced by and, t is replaced by f, these are what, duels of each other। देखिए ये इसका डुएल है, ये इसका डुएल है, ये इसका क्या है, डुएल। प्लीज रिमेंबर, ओके, दे आर व्हाट, डुएल्स ऑफ ईच स्टेटमेंट। दिस इज डुएल ऑफ नीचे वाला, नीचे वाला इज डुएल ऑफ ऊपर वाला। व्हाट इज डुएल, रिप्लेस एंड बाय और बाय एंड। Next is conditional statement. Conditional statement, if conditional statement is P implies Q, is converse is what, Q implies P, inverse is what, not P implies not Q, and contrapositive is what, not Q implies not P. A conditional statement and its contrapositive, they are always logically what, equivalent. If a conditional statement is Q implies P, इसका उल्टा क्या हो जाता है, converse। नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी क्या हो जाता है, इनवर्स, और इनवर्स का उल्टा नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू बिकम्स व्हाट, contrapositive. A conditional statement and its contrapositive are logically equivalent. P implies Q is not Q implies not P. This is contrapositive of this, and Q implies P is equivalent to what, not P implies not Q. Very very important, P implies Q is what, not P or Q. ये सब स्टेटमेंट्स आप प्रूव कर सकते हैं यूजिंग व्हाट, ट्रूथ टेबल्स। लास्ट पार्ट इन दिस इज व्हाट, नेगेशंस ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। नॉट ऑफ नॉट पी इज पी, नॉट ऑफ पी एंड क्यू इज नॉट पी और नॉट क्यू, नॉट ऑफ पी और क्यू इज नॉट पी एंड नॉट क्यू। दिस आर व्हाट, डी मॉर्गन्स लॉ, ओके, ये हमने ऊपर प्रॉपर्टीज में यूज किया था। दिस इज व्हाट, डी मॉर्गन्स लॉ। Not of P implies Q is P and not Q. Not of P double implication Q is P and not Q, or Q and not P. Negations of universal quantifier is what, existential quantifier, and vice versa. Either or का negation will become what, neither nor, और neither nor का negation will become what, either or.
फॉर ऑल बिकम्स सम, फॉर सम बिकम्स ऑल, मैं ये negation की बात कर रहा हूँ. फॉर ऑल, ये फॉर ऑल हो जाएगा देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का negation क्या हो जाएगा, फॉर ऑल. बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, इसका मीनिंग क्या है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी implies क्यू एंड क्यू implies पी, P is necessary and sufficient for Q and Q is necessary and sufficient for P. P is equivalent for Q. कुछ भी बोला, इसका सबका मीनिंग क्या है, इट इज P डबल implication Q. Remember, necessary and sufficient condition means it is which statement, by conditional statement. Now set theory में negation corresponds to what, complement of two sets. Okay, disjunction means what, or connects what to union of two sets in set theory. Conjunction corresponds to what, intersection of two sets. Conditional statement or implication statement is what, subset of a set. Okay, and biconditional statement is what, equality of टू सेट्स. ओके, सेट थ्योरी में आपको भी पता है ये ऐसा रहता है, अगर ये ए रहेगा तो ये क्या रहता है, ए डैश. यूनियन मीन्स आप दो सर्कल बनाते हो, ये है ए ये है बी. इंटरसेक्शन मीन्स दिस पार्ट, सबसेट आप ऐसा बनाते हो. एंड इक्वलिटी मीन्स एक ही सर्कल बनाते हो, सेट्स अगर आपने किया रहेगा तो. ओके, union of two set is what, disjunction. Intersection of two sets is what, conjunction. Subset is what, conditional. And equality of two sets is what, biconditional. कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके ऊपर बहुत सारे चीजें आती है. फॉर P implies Q, दिस इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट. ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव द सेम मीनिंग. ओके, ये भी निग्लेक्ट करते हैं बच्चे लोग. P implies Q, this is called P implies Q. If P then Q, Q if P, ये देखिए डिफरेंस, Q if P, P only if Q. डिफरेंस समझ रहा है, अगर ओनली वर्ड आया, ओनली इफ, तो बाद वाला क्या होने वाला है, Q, पहला वाला क्या है, P. Q whenever P, Q follows from P, very very important this too. P is sufficient for Q and Q is necessary for P. P is sufficient for Q, Q is necessary for P, and sufficient condition for Q is what, P. Necessary condition for P is what, Q. Correct na? Sufficient condition for Q is P. Necessary condition for P is what, Q. अगर डायग्राम्स आ गए आपको, स्विचिंग सर्किट, और मीन्स व्हाट, पैरेलल, एंड मीन्स व्हाट, सीरीज. और मीन्स व्हाट, पैरेलल, एंड मीन्स व्हाट, सीरीज. वी विल डू सम प्रॉब्लम्स, थोड़े से करते हैं इसमें, बाकी सब तो आप लोग इसमें कर सकते हैं. राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. x इक्वल टू y ओनली इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x. ओनली इफ अगर आपको याद रहेगा तो ओनली इफ मतलब P ओनली इफ Q. अगर ओनली वर्ड नहीं रहता था, x इक्वल टू 1, अगर ये वर्ड नहीं रहता था, x इक्वल टू 1 इफ x स्क्वायर इक्वल टू x, दिस बिकम्स P एंड दिस बिकम्स Q. करेक्ट, बट ये ओनली है तो आपका ये क्या हो जाएगा, P, और ये क्या हो जाएगा आपका Q, बिकॉज P ओनली इफ Q. व्हाट इज negation ऑफ P implies Q. इफ स्टेटमेंट चेंज नहीं होता है, एंड स्टेटमेंट चेंज हो जाता है. इफ को जैसे के वैसे, मतलब x इक्वल टू 1 एंड भी लिख सकते हो, या अब बट भी लिख सकते हो. बट इन इंग्लिश लॉजिकली मीन्स एंड. x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू x. x इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू x. ओके, राइट फॉलो from performing the duties sincerely. ओके, क्या है, राइट फॉलोज फ्रॉम. ओके, तो आपका क्या है, Q फॉलोज फ्रॉम P. देखना भाई, इधर दिया है, देख, Q फॉलोज फ्रॉम P. ठीक है, तो आपका P स्टेटमेंट हो गया है बाद वाला, परफॉर्मिंग द ड्यूटी सिंसियरली, ये हो गया आपका P, और ये हो गया आपका Q. करेक्ट है, तो आपका इसका
नेगेशन क्या आएगा, आपको नेगेशन लिखना है तो आप लिखेंगे द ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड सिंसियरली, करेक्ट ना, करेक्ट, एंड द राइट डू नॉट फॉलो और डज नॉट फॉलो, जो भी ऑप्शन में रहेगा, करेक्ट ना। बिकॉज व्हाट इज नेगेशन, पी जो इफ स्टेटमेंट है उसको हलाने का नहीं है, क्यू स्टेटमेंट का क्या लेना है आपको, नेगेशन लेना है। क्यू स्टेटमेंट का क्या लेना है आपको, नेगेशन लेना है। नेक्स्ट देखिए, getting bonus is necessary condition for me to purchase car. Now necessary condition, q is necessary for what, p, करेक्ट ना। आपका क्या है, q is necessary for p, P is sufficient for Q। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ, प्लीज रिमेंबर, Q is necessary for P, तो आपका ये जो है ये क्या आ जाएगा Q, और ये क्या आ जाएगा आपका P। ये आपका क्या आने वाला है Q, करेक्ट, दिस इज Q एंड दिस इज P। इसका नगेशन P हम वैसा ही लिखेंगे, P को हम क्या लिखेंगे, I purchase a car, I purchase a car but do not get bonus। झेप रहा है क्या क्या कर रहा हूं मैं, Q is necessary for P, this is what timber 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 is sufficient for timber timber timber, P is sufficient for Q, करेक्ट। तो आपका नेगेशन क्या आता है, P को हम ऐसा ही रखते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू B, बट A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। प्लीज रिमेंबर, P इज सफिशिएंट फॉर Q। यहां पे देखिए अभी, द सफिशिएंट कंडीशन फॉर बीइंग रिच इज टू बी रैशनल, द सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q इज व्हाट, P, करेक्ट ना। द सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q इज P, करेक्ट। तो आपका क्या आ जाएगा सेंटेंस, अ पर्सन इज रैशनल बट ही इज नॉट रिच, द पर्सन इज रैशनल बट ही इज नॉट रिच। समझ रहा है क्या, प्लीज याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके मार्क्स जा सकते हैं। ये देखिए आप, P is sufficient for Q, Q is necessary for P, sufficient condition for Q is what, P। वैसे ही हम लिख सकते हैं, necessary condition for P is what, Q, sufficient condition for Q is P, sufficient condition for Q is P, sufficient condition for Q is P। और नेगेशन याद रखिए, P को हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं, हम हाथ किसको लगाते हैं, Q को हाथ लगाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप मार्क्स मत घलाइए, प्लीज़ अच्छी तरह से कीजिए। सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q इज P, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, Q इज नेसेसरी फॉर P। ये फॉर रहने वाला है, वो अच्छी तरह से याद रखिए प्लीज़। इट इज फॉल्स दैट द स्काई इज नॉट ब्लू, ये एक स्टेटमेंट है। आपको कैसा डिफाइन करने का आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैंने P को एक स्टेटमेंट लिया, द स्काई इज ब्लू, P को एक स्टेटमेंट कंसिडर किया, द स्काई इज ब्लू, तो व्हाट विल बी लॉजिकल फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स दैट द स्काई इज नॉट ब्लू मीन्स नॉट ऑफ नॉट P, करेक्ट ना। ये हो गया इसका लॉजिकल फॉर्म। सी इट इज फॉल्स मीन्स क्या, नेगेशन। मेरा P स्टेटमेंट क्या है, स्काई इज ब्लू, ये क्या है, द स्काई इज नॉट ब्लू, तो ये कितना हो गया, नॉट ऑफ नॉट P, नॉट ऑफ नॉट P कितना हो गया, P। इसका नेगेशन क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P इज हाउ मच, नॉट P, करेक्ट ना।
पी स्टेटमेंट क्या है, स्काई इज ब्लू, तो नॉट पी क्या आ जाएगा, द स्काई इज नॉट ब्लू। टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है आंसर, प्लीज रॉन्ग लिख के मत आना। द स्काई इज नॉट ब्लू विल बी द नगेशन। अरे भैया, अगर तू चाहता है तो तू पी स्टेटमेंट लेता था, द स्काई इज नॉट ब्लू। गुस्सा मत कर, अगर तूने पी स्टेटमेंट लिया द स्काई इज नॉट ब्लू, तो तेरा लॉजिकल फॉर्म क्या आ जाएगा, नॉट ऑफ पी, करेक्ट ना, क्योंकि इट इज फॉल्स दैट द स्काई इज नॉट ब्लू, तो इसको तूने पी कंसीडर किया है, तो तेरा लॉजिकल फॉर्म क्या आ जाएगा, नॉट पी। इसका नगेशन क्या आ जाएगा, नगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा, तेरा पी, और तेरा पी स्टेटमेंट क्या है, द स्काई इज नॉट ब्लू। देखो वही आया है, द स्काई इज नॉट ब्लू। अगर डायरेक्टली नहीं समझ रहा है, यू ऑलवेज कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू विच फॉर्म, लॉजिकल फॉर्म। यहाँ पे देखिए शाइनिंग मारा है, इफ द वेदर इज फाइन, इसको मैंने कंसिडर कर दिया सपोज पी। देन माई फ्रेंड्स आर कमिंग, इसको मैंने कंसिडर कर लिया क्यू। एंड वी गो फॉर अ पिकनिक, इसको मैंने कंसिडर कर दिया आर। तो लॉजिकल फॉर्म आपका स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, पी इंप्लाइज क्यू एंड आर। इसका मुझे क्या चाहिए, नेगेशन। सो व्हाट विल बी negation ऑफ पी इंप्लाइज क्यू एंड आर। negation कैसा करते हैं, पहले वाले को हाथ नहीं लगाते हैं, दूसरे वाले का क्या ले लेते हैं, negation। तो ये कितना हो जाएगा, पी एंड नॉट क्यू और नॉट आर, पी एंड नॉट क्यू और नॉट आर। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट बनाओ सिंपल, पी क्या है, द वेदर इज फाइन, ये क्या है, एंड माई फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग, करेक्ट ना, क्योंकि ये नॉट क्यू है, ये क्या है, और आपका वी गो फॉर अ पिकनिक, तो और वी आर नॉट गोइंग फॉर अ पिकनिक। झेपा क्या, तीन तीन स्टेटमेंट है, नहीं समझा तो और एक देखिए। इसको मैं कंसीडर करता हूं पी, इसको मैं कंसीडर करता हूं क्यू, इसको मैं कंसीडर करता हूं आर। तो आपका लॉजिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉजिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी पी एंड क्यू इंप्लाइज आर, करेक्ट ना। इसका नगेशन क्या हो जाएगा, नगेशन ऑफ पी एंड क्यू इंप्लाइज आर। नगेशन में पहले वाले को हाथ नहीं लगाते हैं, दूसरे वाले का नगेशन लेते हैं। तो पी एंड क्यू एंड नॉट आर, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पी को हाथ नहीं लगाया, क्यू को हाथ नहीं लगाया, एंड आर को हाथ लगाया, 8 इज नॉट लेस देन 7, करेक्ट, 8 इज नॉट लेस देन 7। ठीक है, झेप रहा है क्या कुछ कुछ, वेरी गुड। अ मैन इज रिच इफ एंड ओनली इफ, अ मैन इज रिच को कंसिडर कर लिया पी, ही इज हैप्पी को कंसिडर कर दिया क्यू। तो आपका नगेशन ऑफ पी, इफ एंड ओनली इफ मीन्स डबल इम्प्लीकेशन हो गया, ये कितना आता है, पी एंड नॉट क्यू और क्यू एंड नॉट पी। ठीक है, नेगेशन में किधर भी आप याद रखिए, इफ देन और इफ एंड ओनली इफ कभी नहीं आता, सब एंड और में रहता है। पी क्या है आपका, मैन इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, देखना ये नॉट हैप्पी, और मैन इज हैप्पी, क्यों क्या है हैप्पी, बट ही इज नॉट रिच। अरे भैया ये देख, पी क्या है, मैन इज रिच, ये क्या है एंड या बट, नॉट क्यू क्या है, क्यू इज ही इज हैप्पी, नॉट क्यू विल बी ही इज नॉट हैप्पी। ये स्टेटमेंट, ये क्या है सिंबल, और क्यू इज व्हाट, मैन इज हैप्पी, एंड पी इज व्हाट, मैन इज रिच, नॉट पी विल बी
ही इज नॉट रिच, बड़ा बड़ा कर देने का है। नेक्स्ट इज ऑल्सो सिमिलर, अभी मैं इसका करता नहीं हूं। आई एम ब्रेव इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, आई एम ब्रेव को क्या ले लेंगे, पी, और ये अब्दुल नारायण दिलरुबा को क्या ले लेंगे, क्यू। तो व्हाट इज negation ऑफ P डबल implication Q? दिस विल बिकम P एंड नॉट Q। ये तो पहले वाला ही है इफ देन का, सिर्फ आगे और बढ़ा देना है आपको, Q एंड नॉट P। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसका मीनिंग क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मीनिंग क्या है, इफ एंड ओनली इफ। और देखिए, संदीप नाइदर लाइक्स टी nor coffee but enjoys a soft drink. Neither nor becomes either or. Neither nor becomes either or. इसको आपने ले लिया, neither likes tea nor coffee। ओके, तो ये आपका लॉजिकल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, नॉट P एंड नॉट Q, बट, ओके, बट मीन्स एंड, enjoys a सॉफ्ट ड्रिंक। ये इसका लॉजिकल फॉर्म हो गया। तो इसका नेगेशन क्या आएगा, नेगेशन ऑफ नॉट P एंड नॉट Q एंड R। तो इसका नेगेशन ले लेंगे तो ये आ जाएगा पहले वाले का नेगेशन एंड बिकम्स और दूसरे वाले का नेगेशन। तो ये कितना आ जाता है, P और Q और नॉट R, P और Q और नॉट R। तो मैं क्या लिख सकता हूं, संदीप either likes tea, correct, either or coffee, or he does not enjoys a soft drink। झेपा क्या भैया जी, either or, neither nor becomes what, neither nor becomes either or, either or becomes neither nor, और उसके आगे और एक दिया है बट म्हणजे एंड, एंड का negation क्या हो जाता है, और। तो संदीप, इसको सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हैं, संदीप लाइक्स टी और कॉफी और ही डज नॉट enjoys अ सॉफ्ट ड्रिंक। नहीं समझा, और एक देखिए, आइदर और बिकम्स व्हाट, नाइदर नॉर। आइदर 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आइदर को क्या लिखेंगे, नाइदर 25 is a perfect square, okay, nor 41 is divisible by 7। neither 25 is a perfect square nor 41 is divisible by 7। even though it is not cloudy it is still raining। even though it is not cloudy, तो इसको अगर आपने स्टेटमेंट कंसीडर कर लिया P, इट इज नॉट रेनिंग Q, इसका लॉजिकल फॉर्म है P एंड Q। याद रखिए, ये टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, आप टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से कीजिए। इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। व्हाट विल बी negation ऑफ दिस, negation ऑफ नॉट ऑफ P एंड Q विल बी हाउ मच, नॉट P और नॉट Q। ओके, तो इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज नॉट क्लाउडी P है, तो नॉट P क्या होएगा, इट इज क्लाउडी, करेक्ट, इट इज क्लाउडी। ये क्या हो गया आपका, और इट इज नॉट रेनिंग, और इट इज नॉट स्टिल रेनिंग, वो भी आप लिख सकते हैं। याद रखिए, इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। टेक्स्ट बुक देखिए प्लीज, टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम सब मैं कर रहा हूं, ओके। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस, ऑल बिकम्स व्हाट, some equilateral triangles are not isosceles, okay। some continuous functions are differentiable, all continuous functions are not
डिफरेंशिएबल। ठीक है क्या? सम बिकम्स ऑल एंड ऑल बिकम्स सम. All equilateral triangles are isosceles. Some equilateral triangles are not isosceles. Some continuous functions are differentiable. All continuous functions are what? Not differentiable. For all n belonging to n, for all रहेगा तो there exist, डायरेक्ट लिखता हूँ, there exist n belonging to n such that n plus 1 is not equal to 2, not greater than or not greater than 2. ओके, और लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. n प्लस 1 ग्रेटर देन 2 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा? नेगेशन, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, नेगेशन. n प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू n. देयर एग्जिस्ट के लिए क्या आएगा? फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, x square is not less than x. x square is not less than x. ठीक है? Democracy survives if the leaders are not corrupt. This is what? Q if P. याद रखिए, अगर ओनली रहेगा तो P ओनली इफ Q. ये डिफरेंस याद रखिए प्लीज. अगर वर्ड बीच में अगर डेमोक्रेसी सर्वाइव्स ओनली इफ रहता था तो दिस बिकम्स व्हाट? Q. लेकिन अभी ये ओनली नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका P, और ये क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी सर्वाइव्स, ये क्या हो जाएगा आपका Q. ठीक है? Q इफ P, P ओनली इफ Q. याद रखिए. तो अभी P तो हम लोग नेगेशन कैसे लिखते हैं? द लीडर्स आर नॉट करप्ट. द लीडर्स आर नॉट करप्ट. ओके, तो P इंप्लाइज Q का negation क्या है भैया? इट इज व्हाट? P एंड नॉट Q. The leaders are not corrupt, but democracy does not survive. झेप रहा है क्या? अगर यही क्वेश्चन में आपको बोला कि विदाउट यूजिंग इफ देन आप स्टेटमेंट बनाओ, ऐसा भी पूछ सकते हैं. तो P implies Q is equivalent to what? Not P और Q. करेक्ट ना? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? द लीडर्स आर करप्ट. करेक्ट ना? क्योंकि द लीडर्स आर नॉट करप्ट आपका क्या है? P. नॉट P क्या आएगा? लीडर्स आर करप्ट. और डेमोक्रेसी सर्वाइव्स. अगर आपको सेम मीनिंग के लिए पूछा है, इफ देन नहीं यूज करना है और सेम मीनिंग का स्टेटमेंट बनाओ, तो दिस इज व्हाट? सेम मीनिंग. P implies Q is logically equivalent to what? Not P or Q. ओके, एंड आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट हैविंग सेम मीनिंग. अगर ऐसा कुछ पूछा है तो यू ऑलवेज कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट इनटू विच फॉर्म? लॉजिकल फॉर्म. कुछ भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट? नॉट Q implies not P. अ contrapositive statement and a conditional statement are logically equivalent. They are always equivalent to what? Also not P or Q. याद रखिए, जस्ट सिर्फ वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो बातें मैंने आज बताई है आपको, ये है जो लोग नहीं करते हमेशा. ये वाली है, किधर गई किधर गई किधर गई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. P implies Q if P then Q. Q if P, P ओनली इफ Q. ये मैं बड़बड़ कर रहा था आपको. अगर सिर्फ इफ रहेगा तो बाद वाला P है, ओनली इफ रहेगा तो बाद वाला क्या आ जाता है? Q आ जाता है. Q follows from P. This too again. P is sufficient for Q. Q is necessary for P. Sufficient condition for Q is P. Necessary condition for Q is, sorry, necessary condition for P is Q. Q is necessary for P. याद रखिए, sufficient condition for Q is P. Necessary condition for P is Q, because Q क्या है? Necessary for P. P is sufficient for Q. Confusion मत डालिए प्लीज. P is sufficient for Q मतलब sufficient condition for Q क्या होना चाहिए? P.
और Q is necessary for P, so necessary condition for P is what? Q. ठीक है, और रहेगा तो द स्विचेस आर व्हाट इन पैरेलल, एंड रहेगा तो स्विचेस आर व्हाट इन सीरीज। प्लीज इसमें मार्क्स मत घलाइए प्लीज, ये सबसे टॉपिक बोर होता है करने के लिए मुझे पता है, लेकिन ये प्लीज याद रखिए, ये और नेगेशंस, इस पे ही अगर आपको आया कुछ प्रॉब्लम तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, बाकी ट्रूथ टेबल से आप लोग कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।